Good morning students, I welcome you all to the online classes of SGOI. In the last class we have completed till exercise 4E. Today we will be starting with new exercise, that is 4F. 4F is completely based upon the simplification of fractions. Okay, and for that you are required to know certain rules which are related to BOD mass, है ना. BDMAS रूल आपने पहले भी पढ़ा हुआ है पहले एक्सरसाइज में. उसमें एक और चीज ऐड हो गई, दैट इज ब्रैकेट, है ना. आपको बाकी का तो मतलब पता ही है. BOD mass stands for whenever you are given with a simplification question, first of all you are required to look at the bracket. ठीक है, सबसे पहले आप ब्रैकेट को देखोगे. अगर ब्रैकेट कहीं मिलता है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे. BOD mass मीन्स इसकी ये प्रोफिशिएंसी है. सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन ऑफ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप एक साथ कर सकते हो, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी एक साथ कर सकते हो, लेकिन बाकी चीजों को आपको अलग अलग ही हैंडल करना पड़ेगा. ठीक है, तो B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट. ब्रैकेट काफी टाइप्स के होते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज स्मॉल ब्रैकेट. ठीक है, इसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं या फिर स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं. ठीक है, दिस इज कर्ली ब्रैकेट. ठीक है, अगर ऐसे कहीं बना हुआ दिस इज कॉल्ड बार ब्रैकेट. ठीक, ऑफ, ओ का मतलब है ऑफ. ऑफ स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है. देन डिवीजन आप जानते ही हो, दिस इज डिवीजन, दिस इज मल्टीप्लिकेशन, दिस इज एडिशन एंड दिस वन इज सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो अगर कहीं पे भी wherever you get any kind of question related to simplification where you are required to deal with bracket, division, multiplication, of and so on, then you are supposed to focus on this proficiency. First of all you will be required to start from the bracket and that to अगर बहुत सारे brackets हैं तो सबसे पहले सबसे innermost bracket को solve करेंगे. ठीक है, with the help of some examples or you could say with the help of some questions we shall start the exercise 4F. Question number 1, it is saying find and it is given first part 1 upon 8 of 40. You have to find 1 upon 8 of 40. ठीक है, this is the question. So you are just required to, you know that of means multiply, so you will be supposed to remove this off with a multiplication sign. So it will give you 1 upon 8 multiply by 40. You know that we could reduce both of these numbers. 8 ones are 8 and 8 5 are 40. So answer would be 1 multiplied by 5, that will be 5. So from here, from this we can say that answer to this question will be 5. Okay, so let's move further. I will be telling one more question of this question number 1 and rest I want you to solve by yourself so that you could get a better practice of such kind of questions. I don't think you will be finding it much difficult while solving them because these are the most basic kind of questions. So let's see part number 4. In part number 4 it is given 3 upon 4 of rupees 1. It is given 3 upon 4 of rupees 1. Okay, so you have to solve this. It should have given simply 3 upon 4 of 1. Why it is giving rupees before 1? Because अगर आप रुपीज नहीं दोगे, सिर्फ 1 देते तो आंसर बहुत सिंपल से सॉल्व हो गया था. आप लिखते 3 अपॉन 4, ऑफ के बदले मल्टीप्लिकेशन साइन लगाते और 1 से मल्टीप्लाई करते तो एज इट इज 3 अपॉन 4 ही आंसर हो जाता. बट यहाँ पे उसने रुपीज इसलिए दिया है ताकि इस छोटी वैल्यू को आप बड़ा में चेंज कर सको, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि रुपीज को पहले पैसे में कन्वर्ट करो, तभी ये क्वेश्चन थोड़ा वैलिड समझ में आएगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस रुपीज इनटू पैसा. यू नो दैट 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा. ठीक है, आप जानते हो 1 रुपी किसके इक्वल होता है? 100 पैसा के इक्वल होता है. तो एट दिस प्लेस, इन प्लेस ऑफ 1 रुपीज यू कैन डायरेक्टली राइट 100 पैसा. तो क्वेश्चन विल बिकम 3 अपॉन 4 of 100 paisa. ठीक है, question will change and will form to 3 upon 4 of 100 paisa. Then you will be writing it 3 upon 4 multiply by 100 paisa. Okay, you know that you can easily eliminate 4 and 100. 4 ones are 4, where
इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो यू विल गेट 4 2 ज़ा 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 मिलेगा, 2 और 0 20 होगा, 4 5 ज़ा 20। सो जब रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 25 आएगा। नाउ 25 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो वी विल गेट 75 और आंसर हो जाएगा 75 पैसा एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके, similarly in part 5 it is saying 5/8 of 1 kilometer. In that question you are supposed to change kilometer into meter and you know that 1 kilometer is equal to 100,000 meter. So in place of 1 kilometer you can directly write 1000 meter and then you can solve the question as I have done for this part number 4. I'll be telling one more, part number 6. In part number 6 it is given 5/12 of 1 hour. It is saying 5/12 of 1 hour. ठीक है, अगर यहाँ पे 1 आवर ना दे करके अगर वो देता एटलीस्ट आई थिंक 72 आवर्स देता तो मैं आर को चेंज ना करता फिर, है ना। लेकिन यहाँ पे वैल्यू 1 आवर दी गई है और बहुत छोटी वैल्यू है, आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5/12 का तो आंसर ऑटोमेटिकली 5/12 आ जाएगा। तो उसको सॉल्व करने कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा ना, इसलिए हम आर को फिर से किसमें चेंज करेंगे, इसकी छोटी वैल्यू में चेंज करेंगे, मतलब मिनट्स में चेंज करेंगे। एंड यू नो दैट 1 hour is equal to 60 minutes. So we can easily write 60 minutes in place of 1 hour. So question will become 5/12 of 60 minutes. Question will become 5/12 of 60 minutes. Replace this of with multiplication sign. It will become 5/12 multiplied by 60. You know that 12 ones are 12 and 12 fives are 60. Now you can multiply 5 with 5. The answer will come out to be 25 minutes. Okay, answer would be 25 minutes. So I hope you have got the concept very well, how you have to approach certain kind of questions. Okay, let's move further from question number 2 to question number 13. They are completely dealing with the simplification problems that would be based upon the BODMAS rule which I have told you in the very beginning of this class. Okay, so let's start from question number 2. I want you all to pay more attention now because these questions would be a little bit tricky, or you could say they will require more attention, otherwise you won't be able to understand how the process is being processed. Question number 2. The question says 1 whole 1/6 divide by 1 whole 5/9, 1 whole 5/9 multiply by 3 whole 1/3 multiply by 3 whole 1/3. Let's divide the board into two halves. Here this is the question number 2 और यहाँ पे मैं question number 3 को skip करके question number 4 करवाऊंगा. In question number 4 the question says 6 whole 1/5 6 whole 1/5 divided by 3 whole 1/10 3 whole 1/10, then of 2 whole 1/2 of 2 whole 1/2 and then division sign and then it's 1/4. Okay, now let's start from this question, that is question number 2. Always remember BODMAS rule while solving such kind of simplification problems. According to the BODMAS rule, it says first of all you are required to solve bracket, but this question does not contain any bracket. Okay, so let's before starting the question we should convert these mixed fractions into improper fractions. So it will give you 6 1 is 6 plus 1 7/6 divide by 9 1 is 9 plus 5 14/9 multiply by 3 3 is 9 plus 1 10/3. ठीक है, now this question does not contain even bracket nor off. ठीक है, ये क्वेश्चन में ना ही ब्रैकेट है और ना ही ऑफ है। उसके बाद बोला जा रहा है कि ब्रैकेट और ऑफ के बाद जो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंसी रखता है या वैल्यू रखता है वो डिवीजन रखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, डिवीजन को सॉल्व करो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सॉल्व दिस डिवीजन। आपको ये ब्रैकेट नहीं लगाना इस तरह से, मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको, ठीक है ना। यू नो दैट कि जब डिवीजन को सॉल्व करते हैं तो डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में और उसके आगे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं। तो यू विल गेट 7/6 मल्टीप्लाई बाय 9/14 और मल्टीप्लाई बाय 10/3। ठीक है, अब सारे के सारे वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में आ गए तो आप डायरेक्टली आराम से सॉल्व कर सकते हो। यू कैन क्लियरली सी कि 7 1 is 7 and 7 2 is
14. Now 3 2s are 6 and 3 3s are 9. 3 1s are 3 and 3 1s are 3. Now you can eliminate this as well. 2 1s are 2 and 2 5s are 10. सब कुछ एलिमिनेट हो गया न्यूमरेटर से, सिर्फ और सिर्फ बच रहा है 5. तो आंसर वुड बी 5 upon 2 multiplied by 1, answer would be 2. So 5 upon 2 is the answer. Now you can also convert this into mixed fractions. Mixed fractions में आप चेंज करोगे तो आंसर कितना आएगा 2 whole 1 upon 2 और यही आपका अल्टीमेट आंसर है. ठीक है. So I hope आपको क्लियर हो गया. Now moving to question number 4. Again you have to apply the same process. First of all you are required to change this mixed fractions into improper, otherwise you won't be able to solve them. So it will get us 5 6 30 plus 1 31 upon 5. Divide by 10 3 30 plus 1 31 upon 10 of, it will be 2 to the 4 plus 1 5 by 2 and divide by 1 upon 4. Okay, now again you have to go to this BROADMAS property. It is saying first of all you are required to solve the brackets, but this question does not contain any brackets, so you will be starting from the off sign which is here. Okay, so first of all हम इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव यू 31 upon 5 डिवाइड, ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है, बट पहले ऑफ वाला मल्टीप्लिकेशन ही सॉल्व करेंगे. 31 upon 10 मल्टीप्लाई बाय 5 by 2. बाकी सभी चीजों को एज इट इज ही आप लिख दोगे. सॉल्व करना है इतने पार्ट को. यू कैन क्लियरली सी इट विल गिव यू 5 1s are 5 and 5 2s are 10. ठीक है, बाकी कुछ एलिमिनेट नहीं होगा. यहाँ से हो जाएगा 31 upon 5 डिवाइड बाय, it will give you 31 into 1 31 upon 4 and divide by 1 upon 4. ठीक है, एक लाइन में आपको सिर्फ एक ही ऑपरेशन करना है, इससे जो एरर का चांस है वो बहुत नेग्लिजिबल की इक्वल हो जाता है. नाउ इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो इस वाले नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे. तो we will get 31 upon 5 मल्टीप्लाई बाय 4 upon 31 और डिवाइड बाय 1 upon 4. आप चाहो तो पूरे इकट्ठा कर सकते थे, बट एक स्टेप में ही करनी है आराम से. 31 1 31 and 31 31, ये एलिमिनेट हो जाएगा. ये फ्रैक्शन बन जाएगा 4 upon 5. इसको सॉल्व करना है तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन चेंज करेंगे और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे. तो आंसर मिलेगा आपको 4 upon 5 मल्टीप्लाई बाय 4 upon 1. ठीक है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ क्या बच रहा है 4 upon 5. डिवीजन को चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में तो इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा. नाउ 4 4 16 upon 5. 16 upon 5 इसका आंसर है. इसको आप मिक्स में भी चेंज कर सकते हो. You will get 5 3 15, remainder 1 upon 5. So 3 whole 1 upon 5 will be the answer to this question number 4. Okay. Then look at the solution properly and try to solve these questions once again by yourself, and then only you can get the clarity of the concept and the confidence also which is required to solve the questions related to simplification. I cannot solve all the questions here on the board. Some has to be left on you so that you can practice them by yourself and boost your confidence when you will get the answer by yourself. Now let's move further. I am taking one more question. I am taking question number 8. Okay, in question number 8, the question says 2 upon 3 plus 4 upon 9. It is saying 2 upon 3 plus 4 upon 9. And then of 3 upon 5, of 3 upon 5, then it is saying divide 1 whole 2 by 3, divide 1 whole 2 upon 3, and then multiply 1 whole 1 by 4, multiply 1 whole 1 by 4 and minus 1 upon 3. ठीक है, क्वेश्चन देखने में काफी लेंदी लग रहा है, बट अगर आप एक बार में सिर्फ एक स्टेप को सॉल्व करते हो चलोगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली आराम से सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, जस्ट फॉलो माय रूल्स एंड दे आर, यू हैव टू सॉल्व वन ऑपरेशन इन वन स्टेप. एक स्टेप में सिर्फ एक ही ऑपरेशन आप सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हो BROADMAS में सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट सॉल्व होता है. तो इसको सॉल्व करोगे तो इन दोनों का एलसीएम लोगे, आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा 9 मिलेगा. नाउ 3 3 9, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 होगा, प्लस 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 आएगा. फ्रॉम हियर क्या मिल जाएगा आपको 6 + 4 10 upon 9 मिल जाएगा ना. मैंने करके बता दिया, मैं सीधे यहाँ पे 10 upon 9 लिख दे रहा हूँ. ठीक है, कितना मिलेगा यहाँ से 10 upon 9. कैसे मिला 6 + 4 upon 9 से. ठीक है, एक स्टेप मैंने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया बिकॉज स्पेस इतना इनफ नहीं है. आपको वो स्टेप भी यहाँ पे लिखना है
ऐड करने वाला और उसके बाद बाकी चीजें देखो, ठीक है। इट विल बी चेंजिंग इनटू 10/9 ऑफ 3/5 डिवाइड, इसको चेंज करेंगे मिक्स इम्प्रॉपर में, तो 3 1 3 + 2 5/3 मल्टीप्लाई बाय 4 1 4 + 1 5/4 - 1/3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स ऑफ, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। बट क्लियरली आप देख पा रहे हो 5 1 5 और 5 2 10 और 3 1 3 और 3 3 9, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 2 1 2/3 × 1 3, 2/3 डिवाइड बाय 5/3 मल्टीप्लाई बाय 5/4 - 1/3, ठीक है। इस वाले स्टेप में क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे, है ना। डिवीजन को चेंज कर सॉल्व करने के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में। यू विल गेट 2/3 मल्टीप्लाई बाय, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, यू विल गेट 3/5, नाउ मल्टीप्लाई बाय 5/4 एंड देन -1/3, ठीक है। 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा, 5 से 5 एलिमिनेट हो जाएगा, 2 1 2 एंड 2 2 4 हो जाएगा। ऊपर से कुछ नहीं बचा, बचा कितना 1/2 - 1/3, ठीक है। बाकी इधर सॉल्व कर रहा हूँ, 1/2 - 1/3 एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम 6 आएगा। नाउ डिवाइड 6 फ्रॉम 2, 2 3 = 6 और 3 × 1 करेंगे तो 3 मिलेगा, -3 का डिवाइड 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, यू विल गेट 2, क्योंकि 3 2 = 6 होता है, 2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा। तो आंसर फ्रॉम हियर विल बी 1/6 और यही आपका अल्टीमेटली आंसर होगा, ठीक है। Now I am taking one more question, that is question number 14, and that is the last question of this exercise. Just look at this question very properly, very carefully, pay all the attention here, and then only you will be able to solve the rest of the questions which I am leaving for you, and they will be your homework, and I want you to try them honestly and get the answer. Okay, now question number 14. Question number 14 says 5 whole 1/3, 5 whole 1/3 minus, then it is square bracket on 2 whole 1/3, 2 whole 1/3, and then it is saying divide, then curly brackets on, it is saying 3/4 - 1/2, 3/4 - 1/2 multiply 7/10 -3/5, और ये ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर है, ठीक है। अब सारे ब्रैकेट्स को क्लोज करना है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो इस क्वेश्चन में एक ब्रैकेट नहीं है, बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट व्हिच आई हैव टोल्ड यू, you are supposed to solve the bracket which is मतलब सबसे अंदर है ना, इनर मोस्ट ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इनर मोस्ट ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला ब्रैकेट इनर मोस्ट है, इसलिए सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, और उस प्रोसेस में जितने भी ये मिक्स फ्रैक्शंस है उनको हम इम्प्रॉपर में चेंज करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो 5 3 = 15 + 1 16/3 minus 3 2 = 6 + 1 7/3 divide by 3/4 minus 1/2 multiply by, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है हमको। 10 और 5 का एलसीएम आप लोगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा ऑफ कोर्स। 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 7 से तो 7 मिलेगा माइनस। अब 5 से डिवाइड करेंगे 10 को, व्हाट यू विल गेट 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यू विल गेट 6 एंड ऐसे, ठीक है। नाउ 16/3 minus 7/3 डिवाइड बाय, अब हमको कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये वाला ब्रैकेट हमको सॉल्व करना है, कर्ली ब्रैकेट। तो 3/4 minus 1/2 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करके ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 1/10 कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज, ठीक है। अब देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर दो ऑपरेशंस हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है और एक सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो व्हाट यू विल गेट 16/3 minus 7/3 डिवाइड बाय
3/4 माइनस, इसको सॉल्व करो तो कितना मिलेगा 1 इंटू 1 1 अपॉन 2 इंटू 10 20, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज। ठीक है, अब सबसे पहले सबसे अंदर का ब्रैकेट करते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट्स में अभी ये चीज बची हुई है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो व्हाट यू विल राइट 16/3 माइनस 7/3 डिवाइड बाय 4 और 20 का एलसीएम आप लोगों को तो 20 आएगा। ठीक है, 4 और 20 का एलसीएम 20 आएगा। 4 5 से 25 इंटू 3 15 माइनस 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 आएगा। ठीक है, बाकी इससे इधर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बाकी पार्ट। ठीक है, नाउ 15 माइनस 1 14/20। ठीक है, 14/20, तो क्वेश्चन हो जाएगा 16/3 माइनस ये है 7/3। यहाँ सॉल्व करने कितना मिला 14/20। ठीक है, लेकिन ये डिवीजन का साइन है, डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो ये कितना बन जाएगा 20 ऊपर चला जाएगा 14 नीचे, रेसिप्रोकल है ना, तो 20/40। अब मल्टीप्लाई करना है तो 7 1 is 7 and 7 2 is 14, 2 1 is 2 और 2 10 is 20। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा 10/3, तो 16/3 माइनस 10/3, सेम डिनोमिनेटर्स हैं तो डायरेक्टली हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे न्यूमरेटर्स को। नीचे आएगा 3, ऊपर है 16 माइनस 10 दैट इज 6/3, 3 1 is 3 and 3 2 is 6, दैट मींस 2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, 2 will be the answer to this question number 14, and here we will be completing this exercise 4F in tomorrow next class. What we will be doing, we will be starting